Good morning, children. Welcome to the class. Today we are going to discuss about the non-food crops and the area where it grows, right? So the first non-food crops is rubber, right? Rubber, it is used for different purpose like making the tires of car, right? So we are going to discuss about it. So look at here. This is the map of India. First of all, you need to know that where it grows. So mostly in the region of South India as well as in the region of Northeast India, it grows. So obviously these region experience high amount of rainfall. Okay. So rubber requires a temperature range above 25 degrees centigrade. That means it requires more temperature as well as more rainfall, right? It can be grown in equatorial region. Equator के पास इसको grow किया जा सकता है, as well as in the region of tropical as well as subtropical region, right? So the states in which it grows are Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andaman and Nicobar Island, Garo Hills of Meghalaya. Here it is Meghalaya, right? And India is the fifth largest producer of rubber. So this is the rubber. It is a very, you can say, very important crop nowadays. You can say it is a commercial crop or cash crop. Then we are talking about the next type of crop, that is fiber crop, right? So simply there are 3-4 मेजर फाइबर क्रॉप्स, ठीक है, जिससे हमें धागे मिलते हैं, राइट? सो द फर्स्ट वन इज कॉटन, जूट, हेम्प, सिल्क, राइट? सो यू कैन लुक एट हियर, दिस इज कॉटन, ये कॉटन है। जूट आपको मैं नेक्स्ट में दिखाऊंगा, राइट? ये हेम्प है, लुक एट हियर, दिस इज द ट्री ऑफ हेम्प, इस तरह के रेसे निकलते हैं इससे। देन नेक्स्ट वन इज सिल्क, ठीक है, तो ये मलबरी के लीफ पे ग्रो किया जाता है, सिल्क वॉर्म है ये। सो इस तरह से सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है। So we will discuss one by one. The first one is cotton. So it is a very important crops because it plays a very important role in the textile industry. So in India, approximately 13 million people are dependent upon textile industry, right? So cotton का जो producer है इंडिया का second largest producer, India is the second largest producer of cotton. It grows in the dry parts of black soil, right? So wherever the black soil found, it can be grown, right? Deccan Plateau में black soil पाया जाता है, तो यहाँ पर cotton का growth होता है, right? It require high temperature, light rainfall, and 210 days of frost-free days, ठीक है? 210 दिन ऐसे चाहिए जहाँ पर कि थोड़ा किसी तरह का कोई frost ना हो, right? Bright sunshine चाहिए, एक अच्छा sunshine होना चाहिए, right? Then this crop requires 6 to 8 months to grow, right? It is a kharif crop grown in Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, right? So look at this map. This is the region where prominently cottons are grown in Gujarat, Maharashtra, and in this region. ये black वाला जो region है, यहाँ पर black soil पाया जाता है, तो mostly cotton का grow यहीं पर होता है, right? एंड देन जूट वाला पार्ट देखो, जूट का प्रोडक्शन इसमें दिया हुआ है, मैं बताता हूँ जूट के बारे में, पहले देख लो यहाँ पर कि वेयर इट इज ग्रोन, राइट? सो जूट वाला पार्ट आप देखो यहाँ, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, राइट? ये वाला रीजन, ये पूरा एक ऐसा रीजन है जहाँ पर कि जूट का प्रोडक्शन होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्रॉप, दैट इज आवर जूट। जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। तो आप देखो, आइडेंटिफाई कर लो पिक्चर में जूट कैसा होता है, राइट? जूट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, काफी अच्छा पानी चाहिए होता है इसको, काफी ज्यादा वाटर चाहिए होता है, इसलिए ये फ्लड प्लेन में ग्रो होता है। फ्लड प्लेन, आपको फ्लड प्लेन के बारे में मैंने बताया था कि रिवर का अगर ये बेसिन है तो पानी जहां तक जाता है उसको हम फ्लड प्लेन बोलते हैं। सो बेसिकली ये फ्लड प्लेन पे ग्रो होता है। एंड इसको जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ह्यूमिडिटी इसको चाहिए, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 80%, राइट? ग्रो कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ठीक है। इसका जो यूजेस है, गनी बैग्स, राइट? गनी हो गया, बैग्स हो गया, मैट, रोप, यार्न, कारपेट, इन सारी चीजों को बनाने में इसका यूज किया जाता है। सो यू कैन लुक एट हियर प्रोडक्ट्स ऑफ जूट, ठीक है।
this jute is losing their markets because of लो सिंथेटिक फाइबर लाइक नायलॉन। आज के डेट में देखो कई सारे एक आर्टिफिशियल यार्न, यू कैन से आर्टिफिशियल चीजें बन रही है, जैसे नायलॉन का चीज बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप मार्केट में भी अगर जाओगे तो जूट बैग की जगह पर आपको व्हाइट प्लास्टिक के बैग्स दिखने को मिलेंगे, राइट। सो वो किससे बना होता है? नायलॉन से बना होता है, राइट। तो आज की डेट में जो जूट है, जूट थोड़ा कॉस्टली होता है कंपेरिजन टू दिस सिंथेटिक फाइबर नायलॉन, राइट। सो आज की डेट में जो लोग हैं वो ज्यादा नायलॉन यूज करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जूट का जो मार्केट है वो धीरे धीरे लॉस हो रहा है। बट गवर्नमेंट नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ जूट, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट मेक इट मैंडेटरी फॉर द सुगर इंडस्ट्री। सुगर आप देखना कि जब भी आप देखोगे जो सुगर इंडस्ट्री है, जो चीनी जिसमें रखा जाता है, वो मोस्टली उसका जो बैग होता है वो कैसा होता है? जूट का बना हुआ बैग होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा है कि शुगर की जो पैकिंग होगी वो जूट बैग में ही होगी। ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने? ताकि जो जूट इंडस्ट्रीज हैं, जो जूट के प्रोड्यूसर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो इसको और ज्यादा प्रोड्यूस करें, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हमारा ये देखो एरिया, वहां पर भी दिखाया मैंने, ठीक है। इसमें स्टेट्स मैंने आपको दिखाया कि कौन कौन से स्टेट में जूट का प्रोडक्शन होता है और कितना होता है, राइट। सो यहाँ पर देखो ये अमाउंट दिया हुआ है, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, देन बिहार, असम, राइट, देन आंध्र प्रदेश। सो धीरे धीरे आप देखो यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। सो दीज आर द जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नाउ कम टू द व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स। क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो हमें फार्मर्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि फार्मर्स आज के डेट में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर्स आर दे आर स्टिल, मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल डिपेंडेंट अपॉन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी। कई सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो कि मानसून के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। उसके पास अपना प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होता है, तो जब बारिश होती है तभी वो क्रॉप को इरिगेट करते हैं, राइट। देन सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज द स्मॉल लैंड होल्डिंग। देखो आज हमारे इंडिया में इतने छोटे छोटे लैंड आपको देखने को मिलेंगे, एक फार्मर से बिलोंग करते हैं। सो फार्मर्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस टू मच फ्रॉम दिस स्मॉल पीस ऑफ लैंड, राइट। सो अगर आप दूसरी कंट्री जाओगे तो यू विल सी कि वहां पर एक बड़ा बड़ा फार्म लैंड होता है, बट इंडिया में छोटे छोटे स्मॉल लैंड्स होते हैं, राइट। द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कई सारे मनी लैंडर्स होते हैं जो कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो पर ईयर का 60% या 120% चार्ज करते हैं, राइट। तो इस तरह का इतना ज्यादा अगर इंटरेस्ट रेट पे अगर इसको फार्मर्स को दिया जाएगा पैसा, तो क्या होगा? फार्मर्स हमेशा कर्ज में रहेंगे, राइट और नॉट। सो फार्मर्स नीड मनी। व्हाई दे नीड मनी? टू सो द क्रॉप्स, टू परचेज द फर्टिलाइजर, राइट, टू परचेज सम मशीन्स, टू रिपेयर मशीन्स और टूल्स, राइट। So whatever it is, they need money for growing crops, and these money from where they get? Not from bank, they get from the money lenders. These money lenders charge very high amount of interest, right? The next one is crop failure. कई बार देखो crop fail हो जाते हैं, right or not? इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल कि वेदर कैसा होगा, किसी तरह का कोई पेस्ट अटैक कर दिया क्रॉप के ऊपर तो क्रॉप खराब हो जाते हैं, राइट और नॉट। तो ये काफी ज्यादा रिस्की जॉब है एग्रीकल्चर करना, ठीक है। कई बार फार्मर्स को काफी ज्यादा लॉस लग जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है फार्मर का। देन लैक ऑफ सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज, ठीक है। हमारे कंट्री में सॉइल टेस्टिंग की जो फैसिलिटीज है वो कम है। सॉइल टेस्टिंग का मतलब, हमें ये टेक एन एग्जांपल की है, हमारा लैंड है, राइट। इस सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट है, कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं है, ये हमें जानना होगा, तभी तो हम फर्टिलाइजर अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे, ठीक है। टेक एन एग्जांपल की इस लैंड में पहले से यूरिया की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है, हम उसमें और ज्यादा यूरिया डाल देंगे तो क्या होगा? वो क्रॉप खराब हो जाएगा, राइट और नॉट। या किसी चीज की कमी है इस लैंड में, वो हमें पता नहीं है कि कौन सा इसको फर्टिलाइजर चाहिए, एंड हाउ वी विल नो, राइट। सो हमें क्या चाहिए? सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज चाहिए, जो कि हम सॉइल टेस्ट करके बता सके कि यस, इन दिस सॉइल these are the requirements, these are the fertilizer you need to use, right? Then uneven distribution of land among the farmers. There are many farmers who have very small land, right, and some of the farmer have very big land holdings, right or not. तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ फार्मर्स के पास बहुत कम लैंड है, कुछ फार्मर्स के पास काफी ज्यादा लैंड है, राइट और नॉट। सो इन दिस सिचुएशन यू कैन से दैट government should do something so that
proper distribution can be done, right? Then farmers are facing a big challenge from international competition, right? So many farmers are facing challenges from international, that means foreign country की कई सारी जो फार्मर्स होते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं फूड ग्रेन्स को इंडिया में, राइट और नॉट, और वहाँ की जो फूड ग्रेन्स होती है वो काफी ज्यादा सस्ती होती है कंपैरिजन टू द इंडियन फार्मर्स। तो ऐसे सिचुएशन में जो फॉरेन कंट्रीज के फार्मर के क्रॉप्स होते हैं वो यहाँ पर सेल होते हैं, राइट और नॉट, ना कि इंडियन फार्मर के। देन रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं करती, जैसे रिवर नहीं बनाती है या फिर सॉरी कनाल नहीं बनाती है ना, पॉन्ड का स्ट्रक्चर नहीं करती। दीज आर द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये कौन बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी। गवर्नमेंट को ये सारी चीजें देनी चाहिए फार्मर्स को, जो कि गवर्नमेंट कई बार बहुत कम करती है। सो दीज आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय farmers. If I ask you what are the solution, तो solution lies in problem, right or not? Solution इसी में छिपा हुआ है। देखो अगर फार्मर मानसून के ऊपर डिपेंड है तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड प्रोवाइड प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी। अगर उनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग है तो हमें क्या करना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए लैंड को, सभी को लगभग बराबर लैंड देना चाहिए, राइट और नॉट। हाई कॉस्ट बोरोइंग, मनी लेंडर अगर ज्यादा पैसे पे इसको पैसे देते हैं, क्रेडिट देते हैं, तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बैंक से उनको लोन दिलवाना चाहिए एट द चीपर रेट, राइट। देन क्रॉप फेलियर अगर हो जाता है कई बार तो हमें क्या करना चाहिए, क्रॉप का इंश्योरेंस करना चाहिए, राइट और नॉट, क्रॉप इंश्योरेंस करना चाहिए। अगर फेल हो जाता है तो फिर भी इंश्योरेंस कंपनी उसको कुछ पैसे दे, राइट। देन हमें टेस्टिंग लैब्स क्रिएट करने चाहिए, राइट और नॉट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक करना चाहिए। देन इंटरनेशनल कंपटीशन से बचने के लिए हमें टैरिफ लगाना चाहिए कि दूसरे कंट्री से अगर कोई क्रॉप्स इंडिया आ रहा है तो उसके ऊपर कुछ टैक्सेस लगाने चाहिए, राइट और नॉट। गवर्नमेंट को पैसे खर्च करने चाहिए फॉर टू डेवलप द प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, राइट और नॉट। सो दीज आर द थिंग्स we can do to improve the lives of farmers, right? So what are the decisions taken by the government to improve the lives of farmer? So some of the reforms are written over here. These are the technological and institutional reforms, right, taken by the Indian government, right? What is institutional reform? देखो एग्रीकल्चर में कई बार गवर्नमेंट ने कई सारी चीजें कोशिश की है करने की, हालांकि उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी these are the steps taken by the government. For example, first one is consolidation, ठीक है, and collection of land. That means you can say कि अगर फार्मर्स के पास छोटे छोटे लैंड है, राइट और नॉट, इस छोटे लैंड पर ये लोग फार्मिंग करते हैं, इसके बीच में कई सारे बंड्स होते हैं, राइट और नॉट, दिस इज बंड जो सेपरेट करते हैं टू लैंड को। तो बंड में भी काफी ज्यादा लैंड बर्बाद होता है, राइट और नॉट। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि कई सारे फार्मर्स को एक साथ बोले कि दे कैन डू फार्मिंग टुगेदर, एक साथ वो फार्म कर सकते हैं। तो इस ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, सभी लोग अपना लैंड को एक साथ मिलाएंगे, राइट और नॉट, और इस बंड को भी वहां से हटा सकते हैं, राइट और नॉट। अब ऐसे में बेनिफिट ये क्या होगा कि वो लोग कॉपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। वो लोग सभी लोग मिलके क्या कर सकते हैं, एक मशीन से भी खरीद सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर भी खरीद सकते हैं, और वो मशीन से सभी लोग सोइंग कर सकते हैं, राइट और नॉट, ठीक है। तो ये कॉपरेशन होनी चाहिए किसके बीच, फार्मर्स के बीच। गवर्नमेंट ने कई जगह पर इसको ट्राई भी किया है। देन अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, गवर्नमेंट ने क्या किया, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट और नॉट। उसके बाद 1971 में क्या किया गवर्नमेंट ने, लैंड सीलिंग एक्ट लेके आई। इसमें उन्होंने कहा कि दोज फार्मर हु हैव मच अमाउंट ऑफ लैंड, काफी ज्यादा जिसके पास लैंड है, राइट, वो सारा एक्सेस अमाउंट ऑफ लैंड विल गो टू द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। और गवर्नमेंट उस लैंड को क्या करेगी, जो फार्मर के पास लैंड नहीं है या फिर जिसके पास स्मॉल लैंड है, उनको ये लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, राइट और नॉट। तो ये हो गया अबॉलिशन ऑफ जमींदारी एंड लैंड सीलिंग एक्ट, राइट। देन
गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, एज ऑल ऑफ यू नो दैट इन फूड सिक्योरिटी क्लास 9th आपने पढ़ा है कि किस तरह गवर्नमेंट जो है फार्मर्स से क्रॉप खरीदती है, राइट और नॉट। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको मार्केट में सही प्राइस नहीं मिल रहा है, देन सेल योर क्रॉप्स टू मी, राइट और नॉट। गवर्नमेंट को आप अपना क्रॉप सेल कर सकते हो। देन प्रोक्योरमेंट सेम है पॉइंट। देन हम आते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स, ठीक है। टेक्निकल रिफॉर्म्स मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स किए गए, राइट और नॉट, एग्रीकल्चर में। फॉर एग्जांपल यू नो अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, हमारा जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का वो काफी ज्यादा अच्छा हो गया, राइट और नॉट। पहले जो प्रोडक्शन होता था उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या किया था, HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया था, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर को इंट्रोड्यूस किया, है ना। सो दीज आर द वे थ्रू विच वी इंक्रीज द प्रोडक्शन। देन हमारा कंट्री में व्हाइट रिवॉल्यूशन भी आया, राइट। व्हाइट रिवॉल्यूशन मीन्स मिल्क का प्रोडक्शन काफी ज्यादा हाई हो गया। नाउ इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, ठीक है। इंडिया में काफी ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसी व्हाइट रिवॉल्यूशन की वजह से आज आप देखो कई सारे आपके मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी हमारे कंट्री में, जैसे अमूल का नाम सुना होगा आपने, नंदनी दूध का नाम सुना होगा, नंदनी मिल्क, राइट। सो दीज आर द मिल्क प्रोक्योरमेंट इंडस्ट्रीज, जहां पर कि मिल्क को प्रोक्योर किया जाता है, उसको पैकेज किया जाता है और मार्केट में सेल किया जाता है, राइट। सो इन 1980s 19 लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, किसी अगर कोई लैंड है तो वहां पर आसपास पानी है कि नहीं है वो प्रोवाइड कराना, ठीक है। और उस सॉइल का टेस्टिंग करना, ठीक है, कि कितना न्यूट्रिएंट्स है उसमें कितना नहीं है, राइट। या फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स अडॉप्ट करना, ठीक है। ये 1989 1980s 90s में इंट्रोड्यूस किया गया था। देन वी हैव किसान क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। हर एक किसान को जो है, हर एक फार्मर्स को क्या दिया जाएगा, क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, दैट दे कैन विड्रॉ मनी एनी टाइम दे वांट, ठीक है। अगर उसको कुछ पैसे की जरूरत है तो वो पैसे निकाल सकता है। आज के डेट में हर एक फार्मर्स को जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड है उसको 2 लाख रुपीज तक का क्रेडिट दिया जाता है, दैट मीन्स 2 लाख रुपए वो निकाल सकते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सनल एक्सीडेंट स्कीम्स दिया जाता है, ठीक है, कि अगर फार्मर्स में किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया है, नुकसान हो गया, राइट और नॉट, तो ऐसे सिचुएशन में फार्मर्स को इंश्योरेंस के मनी पैसे दिए जाते हैं, राइट। क्रॉप इंश्योरेंस भी किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने स्पेशल वेदर बुलेटिन स्टार्ट किया ऑन टीवी एंड रेडियोस, राइट, फार्मर्स के लिए। फार्मर्स को डेली बताया जाता था कि कैसे, बताया जाता है आज भी कि वेदर का कंडीशन क्या होगा, राइट और नॉट, बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, कब आने वाली है बारिश, राइट। इसके अलावा कई सारे एग्रीकल्चरल प्रोग्राम भी ब्रॉडकास्ट करने शुरू किए गए, जैसे फार्मिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट और नॉट, फार्मिंग में प्रोडक्शन कैसे और ज्यादा हाई हो सकता है। ये सारी चीजें जो है अलग अलग तरह के लोग जो साइंटिस्ट हैं वो आके टीवी पर बताते हैं, रेडियो पर बताते हैं, राइट नॉट। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जो एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करती है, ठीक है, कि किस तरह से, जिस तरह के मान लेते हैं सीड्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए, है ना। ये सारी चीजें कौन करती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसके अलावा हमारी कंट्री में कई सारे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज भी स्टैब्लिश किए गए, ठीक है। उसके बाद वेटनरी सर्विसेज, राइट, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, ये सारी चीज स्टैब्लिश की गई ताकि लोग का जो नॉलेज है एग्रीकल्चर के प्रति या फिर एनिमल हस्बेंड्री के प्रति वो थोड़ा और ज्यादा इंक्रीज हो जाए और हमारे कंट्री में फार्मर का कंडीशन थोड़ा और इम्प्रूव हो जाए, राइट और नॉट। सो दीज आर द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। हालांकि ये जो रिफॉर्म्स लिए गए इसका रिस्पॉन्स जो आया, इसका जो रिजल्ट आया वो मिक्स था। मिक्स रिजल्ट होने का मतलब है कि कई जगह पर देखा गया कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, कई जगह पर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाया, राइट और नॉट। इसको अच्छे तरीके से गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई या फिर लोग इसको अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाए, राइट। सो गवर्नमेंट इज स्टिल डूइंग फॉर द गवर्नमेंट फॉर द फार्मर्स, लेकिन ये आज के डेट में भी इनसफिशियंट है। आज देखो आप कई सारे फार्मर्स क्या करते हैं,
सुसाइड कर लेते हैं, राइट और नॉट? व्हाई? बिकॉज दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, राइट? सो हियर इट इज अबाउट वन भूदान ग्रामदान मूवमेंट, राइट? एक मूवमेंट हुआ था भूदान ग्रामदान, राइट? ये नाम याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो, महात्मा गांधी के बाद जो है, महात्मा गांधी के बाद एक लीडर आया जिसका नाम था विनोबा भावे, राइट? सो ही वाज वेरी क्लोज टू महात्मा गांधी, राइट? महात्मा गांधी का मानना था कि हर एक विलेज को ग्राम स्वराज्य होना चाहिए। स्वराज्य का मतलब होता है सेल्फ रूल, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। महात्मा गांधी का ये विजन था कि हर एक गांव, हर एक विलेज जो है सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हर एक चीज प्रोड्यूस होना चाहिए अपने ही गांव में होना चाहिए, राइट और नॉट? या फिर कोई गांव का रहने वाला कहीं शहर जाने के लिए मजबूर ना हो जाए, राइट? उनको गांव में ही काम मिलना चाहिए। इस तरह के विजन्स थे महात्मा गांधी के, राइट और नॉट? सो महात्मा गांधी के बाद विनोबा भावे ने क्या किया, इसको, इस आइडिया को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है, कई जगह पर वो पैदल ही घूमते थे, ठीक है, पद यात्रा करते थे एक जगह से दूसरी जगह, और लोगों को मीटिंग बुलाते थे, गांव गांव जाके मीटिंग बुलाते थे, लोगों को समझाते थे कि महात्मा गांधी क्या चाहते थे, राइट और नॉट? तो एक बार वो जो है पोचामपल्ली इन आंध्र प्रदेश, राइट और नॉट, यहाँ पर वो लोग बैठ के मीटिंग कर रहे थे, ठीक है? तो कई सारे पुअर लैंडलेस विलेजर्स भी वहां पर मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा कंडीशन ठीक हो, तो हमें भी कुछ लैंड चाहिए, हमारे पास कुछ भी लैंड नहीं है, ठीक है? ये किसने कहा? वहां के पुअर फार्मर ने कहा, ठीक है? तो विनोबा भावे जो थे उस समय, वो थोड़ा सा यू कैन से अनेबल थे हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसके पास, उन्होंने क्या कहा कि हम गवर्नमेंट से बात करेंगे इस बारे में कि जिनके पास लैंड नहीं है उनको लैंड दिया जाए, राइट और नॉट? तो उसी मीटिंग में अचानक से क्या हुआ, एक श्री रामचंद्र रेड्डी नाम का एक फार्मर था, लार्ज लैंड ओनर था, राइट, जिनके पास काफी ज्यादा लैंड था। उसने अपना 80 एकर्स ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमॉन्ग 80 लैंडलेस विलेजर्स, ठीक है? उसी समय ये श्री रामचंद्र रेड्डी ने क्या किया, 80 लैंडलेस विलेजर्स के बीच अपना 80 एकर्स ऑफ लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है? सो इसी एक्ट को कहा जाता है भूदान। भूदान मतलब, दिस इज अ हिंदी वर्ड, ठीक है? भू मतलब लैंड, भूमि, राइट? और दान करना मतलब आप जानते हो, ठीक है? तो उन्होंने अपना लैंड को दान कर दिया, ठीक है? सो यहीं से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है? तो विनोबा भावे जब भी जहां भी जाते थे तो वो अर्ज करते थे, जो लैंड लार्ज लैंड ओनर्स थे उनको कहते थे कि आपको कुछ अपना जो लैंड है वो लैंडलेस को देना चाहिए, राइट और नॉट? तो कई सारे विलेज में कई सारे लैंड ओनर्स ने धीरे धीरे अपना लैंड को लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, ठीक है? सो इसी को कहा जाता है भूदान ग्रामदान, राइट और नॉट? ठीक है? सो दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट is also known as bloodless revolution. What is the meaning of bloodless revolution? देखो, कई बार क्या होता है कि अगर किसी लार्ज लैंड ओनर के पास काफी बड़ा लैंड है, ठीक है, और किसी स्मॉल फार्मर के पास काफी छोटा स्मॉल लैंड है या फिर नहीं है, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि अगर गरीबी आएगी तो क्या होगा, ये स्मॉल फार्मर क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू कॉन्फिस्केट द लैंड ऑफ लार्ज लैंड ओनर, ठीक है? वो छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। विदाउट ब्लड, बिना किसी का खून बहाए, ठीक है, आसानी से क्या हो रहा है, लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट और नॉट? कोई किसी से लैंड छीन नहीं रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में इसलिए इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है, राइट? सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। देखो, एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, यू ऑल ऑफ यू नो, राइट? बट nowadays the share of agriculture is declining in GDP. जीडीपी में आज की डेट में धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो हमारा शेयर है, पहले पूरे जीडीपी का अप्रोक्सीमेटली 52%, 50 to 55% जो जीडीपी का पार्ट होता था वो कहाँ से आता था, एग्रीकल्चर से आता था, राइट? लेकिन यही शेयर अब घट के कितना हो गया है, अप्रोक्सीमेटली 14% हो गया है, राइट? तो ये जीडीपी में काफी ज्यादा घट रहा है, ठीक है?
तो जब ये घटेगा तो इसका कोई बैड इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पे? यस, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर शेयर जीडीपी में कम होगा तो इससे क्या होगा, हमारा दूसरा इंडस्ट्री भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल दोज इंडस्ट्री विच डिपेंड अपॉन रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कॉटन का प्रोडक्शन कम हो गया आज, राइट, तो कॉटन के ऊपर डिपेंड जो इंडस्ट्री है जहां पर कॉटन को बनाया जाता है, क्लॉथ बनाए जाते हैं, ठीक है, वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, यहाँ पर भी इस इंडस्ट्री में भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, राइट और नॉट। इसके बाद मान लेते हैं कि फार्मर अगर पैसे कम अर्न कर रहे हैं, टेक एन एग्जांपल कि फार्मर इज अर्निंग ओनली 5,000 रुपीज, राइट। सो डू यू थिंक दैट दे विल बी एबल टू परचेज समथिंग एक्स्ट्रा? फॉर एग्जांपल क्या वो कुछ ज्यादा खरीद पाएंगे? जैसे कि मान लेते हैं कि क्या वो मार्केट से बिस्किट खरीद पाएंगे, कॉस्टली बिस्किट जो आप खाते हो? क्या उसके बच्चे टॉफी खरीद पाएंगे? या फिर क्या उसके बच्चे स्कूल में जा पाएंगे, प्राइवेट स्कूल में जा पाएंगे? अगर वो नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा, इन सारी चीजों की डिमांड कम होगी, यस और नो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस पॉपुलेशन ऑफ फार्मर, राइट और नॉट, क्योंकि आज के डेट में जो है 44% पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि इन लोगों का कंडीशन ठीक हो तो हमें एग्रीकल्चर का ग्रोथ करना होगा, राइट। सो यू कैन लुक एट हियर ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इन सेक्टर्स। एग्रीकल्चर में कितना ग्रोथ हुआ था 2013-14 में? 4.2%। 14-15 में माइनस में चला गया, 15-16 में ओनली 1.1% ग्रोथ हुआ था, राइट। वहीं इंडस्ट्री को देखो 5%, 6%, 7%, सर्विस सेक्टर 7%, 10%, 9%। तो सबसे कम ग्रोथ किस में हो रहा है? एग्रीकल्चर में हो रहा है, राइट और नॉट, ठीक है। सो इट इज द थिंग टू वरी, राइट और नॉट, हमें ये चीज करना होगा, ठीक, राइट। So look at here, when farmers have been facing so many problems, land under agriculture is decreasing. Can we think of alternative employment? क्या आपको लगता है कि कोई दूसरा ऑप्शन है फार्मर के पास, कुछ दूसरा करने का काम है फार्मर के पास? अगर है तो क्या है आपको बताना है, ठीक है। Then why are farmers committing suicide in several states of country? राइट, कई सारे स्टेट्स में फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या रीजन है? आपको डिफाइन करना है, राइट। देन find out why an Indian farmer does not want his son to become a farmer. So these are the some activity you can do it, right. Now come to the next topic, that is impact of globalization on agriculture. What do you mean by globalization? Globalization का मतलब होता है कि our relation with some other country in terms of food grains, ठीक है। क्या हम फूड ग्रेन्स किसी दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में मंगाते हैं, या फिर क्या हम अपनी कंट्री से किसी दूसरे कंट्री को फूड ग्रेन सेल करते हैं, राइट। सो ये जो ग्लोबलाइजेशन का पीरियड है इंडिया का, हम इसको 3 फेज में डिवाइड करेंगे। पहला बिफोर ब्रिटिश, अंग्रेज के आने से पहले, दैट मीन्स समवेयर अराउंड 1757 के पहले, 1757 टू 1947 जब तक हमें आजादी मिली, उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस 3 पीरियड में हमने डिवाइड किया है। देखो, अंग्रेजों के आने से पहले जो है इंडिया वाज लीडिंग इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इंडिया क्या करती थी, इंडिया के फार्मर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि इंडिया से कई सारे प्रोडक्ट्स फॉरेन मार्केट में भेजा जाता था, राइट और नॉट। और हम इन मामले में काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, इंडिया से कई सारी चीजें जैसे कॉटन को भेजा जाता था, स्पाइसेस भेजे जाते थे टू द डिफरेंट नेशन, यूरोपियन नेशंस, राइट। तो उस समय हमारा जो स्टेटस था वो काफी ज्यादा अच्छा था। बट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड? ब्रिटिश पीरियड के दौरान हमारा जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो कम हो गया, रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ गया, राइट और नॉट। रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ गया मतलब अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने क्या कहा कि आप क्लॉथ मत बनाओ, राइट, आप सिर्फ कॉटन प्रोड्यूस करो, कॉटन हमें दो, हम कॉटन को कहाँ लेके जाएंगे, इंग्लैंड लेके जाएंगे, और इंग्लैंड में हम क्या करेंगे, इस कॉटन को क्लॉथ बनाएंगे, और इस क्लॉथ को वापस से हम या तो यूरोप इंग्लैंड में बेचेंगे और इंडिया में भी बेचेंगे, राइट और नॉट। तो ये हुआ ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो कई बार यहाँ पर रिवोल्ट भी हुआ इंडिया में ड्यूरिंग द 1917 में, ठीक है। आप नेशनलिज्म इन इंडिया जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि अंग्रेजों के समय में एग्रीकल्चर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, राइट। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया स्टार्टेड बिकमिंग
सेल्फ सफिशिएंट कंट्री। जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो क्या हुआ, हमारी कंट्री में काफी ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन होने लगा, राइट और नॉट। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी कुछ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारे कंट्री पर। फॉर एग्जांपल कि हमारा जो ग्राउंड लेवल है वाटर का वो काफी नीचे चला गया, राइट। पानी काफी ज्यादा खर्च हुआ, हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हुआ, राइट और नॉट। इन्वायरमेंट डिग्रेड हुआ, ठीक है। माना जाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है, राइट और नॉट, और लैंड अवेलेबिलिटी बहुत कम है। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। और जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है हमारे पास, राइट और नॉट। तो although we did much to improve, but we have certain limitations। ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुआ तो उसको कुछ लिमिटेशंस हैं, एनवायरनमेंट खराब हुआ है ना, लैंड की अवेलेबिलिटी हमारे पास ज्यादा नहीं है, राइट और नॉट। ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो कम हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम कब आया, 1990 के बाद, ठीक है। 1992 या 1990 के बाद। 1992 में क्या हुआ, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हम दूसरे कंट्री से को भी अलाउ करेंगे कि वो अपना फूड ग्रेन्स हमारे कंट्री में सेल कर सके। टेक एन एग्जांपल, दिस इज अमेरिका, राइट। सो इंडियन गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया अमेरिकन फार्मर को कि वो अपना राइस को लेकर के इंडिया में सेल कर सकते हैं, राइट और नॉट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, इंडियन फार्मर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। हाउ, द इंडियन फार्मर, राइट, take an example, because Indian farmer don't have new machineries, ट्रैक्टर नहीं होते हैं, हार्वेस्टिंग मशीन्स नहीं होते हैं, ये लोग खुद मेहनत करते हैं, राइट और नॉट। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लेते हैं कि इंडियन फार्मर को 1 kg राइस प्रोड्यूस करने में 15 रुपीज कॉस्ट पड़ा, ठीक है। तो ये मार्केट में कितने में सेल करेगा, 20 रुपीज में सेल करेगा। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें, बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन की वजह से एज वेल एज बिकॉज ऑफ सब्सिडीज बाय द गवर्नमेंट, वहां की जो गवर्नमेंट है वो फार्मर को सब्सिडी देती है, ठीक है, कि आप क्रॉप ग्रो करो, हम फर्टिलाइजर आपको फ्री में देंगे, ठीक है। सो टेक एन एग्जांपल, दिस इज यूएसए। यूएसए की गवर्नमेंट क्या बोलती है, फार्मर्स को आप क्रॉप ग्रो करो, फर्टिलाइजर हम फ्री में देंगे, राइट और नॉट। ऐसे सिचुएशन में जो यूएसए का फार्मर है वो राइस को प्रोड्यूस कर रहा है 10 रुपीज पर केजी, राइट और नॉट। तो क्या ये यूएसए का फार्मर इसी राइस को जिसको कि उसने 10 रुपीज पर केजी में प्रोड्यूस किया, कैन ही सेल दिस राइस इन द इंडियन मार्केट इन 14 रुपीज पर केजी? क्या वो बेच सकता है इसको मार्केट में? यस, ही कैन सेल ऑन 14 रुपीज पर केजी। ऐसे सिचुएशन में भी इसको कितने रुपए का बेनिफिट होगा, 4 रुपीज पर केजी का बेनिफिट होगा, राइट और नॉट। बट कैन इंडियन फार्मर सेल इट ऑन द सेम प्राइस? क्या 14 रुपए में इंडियन फार्मर सेल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसने 15 रुपए खर्च किए हैं 1 kg प्रोड्यूस करने में। अगर वो 14 रुपए में सेल करेगा तो उसको नुकसान हो जाएगा, राइट और नॉट, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, इंडियन फार्मर काफी ज्यादा नुकसान झेल रहे हैं, राइट और नॉट। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ टैरिफ लगाना चाहिए ऑन द फॉरेन प्रोडक्ट्स, लाइक जैसे कि 14 रुपए केजी में ये सेल कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इस पर 5 रुपए टैक्स लगाना चाहिए, 6 रुपए टैक्स लगाना चाहिए, ताकि अमेरिका के फार्मर का जो भी प्राइस है उसका प्राइस कितना हो जाए, 20 रुपीज हो जाए, राइट और नॉट। सो दिस इज हाउ द ग्लोबलाइजेशन impacted the Indian agriculture, right? Then we have different issues regarding the agriculture, right? देखो इंडिया में कई सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। देखो ये न्यूज क्लिपिंग्स हैं, ठीक है। आप देखो न्यूज क्लिपिंग्स क्या है, 11th प्लान मस्ट फोकस ऑन फार्मिंग, प्रोड्यूस मोर फूड ग्रेन्स, ठीक है। टाइम टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, यू नो, बियॉन्ड जीएम फूड क्रॉप्स। जीएम मीन्स क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स? आज के डेट में कई सारे ऐसे फूड क्रॉप्स हैं जिसको कि मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है, उसके सीड्स को मॉडिफाई किया जाता है ताकि एक अच्छा क्रॉप्स हो सके, राइट और नॉट। तो आज का अगर आप क्रॉप देखोगे तो देखना आपको कितना शाइनी होता है, राइट और नॉट, और काफी ज्यादा अच्छा दिखने में लगता है। सो इट इज व्हाई, बिकॉज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड, राइट। देन
सेंटर इज इम्पोर्ट टू चेक प्राइस राइज। तो इस तरह की ये न्यूज क्लिपिंग्स हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, राइट। देन सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ हैवी पेस्टिसाइड यूज, राइट। आज के डेट में इंडिया में काफी ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है हमारे हेल्थ के लिए भी और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी, ठीक है। आज हमारा जो कुछ इकोनॉमिस्ट है उनका मानना है, ठीक है, कि जो हमारा कंट्री का जो फ्यूचर है, ठीक है, वो फार्मिंग सेक्टर में थोड़ा खराब है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हमारा जो पॉपुलेशन है वो राइज होता जा रहा है, राइट और नॉट, और हमारे पास लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। सो इंडिया की जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें से अप्रोक्सीमेटली 833 million, right, which depends upon 250 million hectares of land, right। इतना ज्यादा पॉपुलेशन है उसमें उसके पास सिर्फ कितना हेक्टेयर लैंड है? 250 मिलियन हेक्टेयर लैंड, राइट। तो ये बहुत कम है, राइट। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इंडिया के जो फार्मर्स हैं उसको अपने क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डाइवर्सिफाई करने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ व्हीट और राइस ही ग्रो कर रहे हैं, उसके अलावा कई और भी चीजें हैं, जैसे हमारे पास पल्सेस हैं, राइट और नॉट, उसके बाद फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मेडिसिनल हर्ब्स हैं, राइट। इन सबको भी ग्रो करना चाहिए, बायोडीजल क्रॉप्स ग्रो करना चाहिए, राइट और नॉट। So these are the crops which requires very less amount of irrigation, right or not, comparison to the rice and sugarcane. Rice and sugarcane में ज्यादा irrigation की जरूरत होती है, लेकिन ये सारे crops में काफी कम पानी की जरूरत होती है। तो हमारा क्या होगा, पानी भी बचेगा और इन सारे crops की डिमांड भी है, तो हम मार्केट में इसको सेल भी कर सकते हैं, right or not? Okay, then this is paragraph. You read it and देखो इसमें आप क्या समझ में आता है। इसको एक लास्ट में डिबेट द इशू है, ठीक है। आप आई विल आस्क अबाउट इट, सो एक बार इसको आप देख लेना खुद से। सो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर, लुक एट वन बाय वन। ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड कॉमर्शियल फार्मिंग में डिफरेंस बताना है। देन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में डिफरेंस लिखना है। Briefly describe the cropping pattern and cropping seasons. तीन cropping seasons हैं, खरीफ, रबी एंड जैद। Then requirement for growth of these following crops, ठीक है, ये आपको याद करना है। इन सारे क्रॉप्स का रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से इसको ग्रो किया जाता है। Then technological and institutional reforms taken by the government, इसको डिस्कस करना है, right? Then impact of globalization on Indian farmer. So these are the important questions. Try to write the answer, right? I will ask on Tuesday, right? Thank you. Have a nice day.